myself is Tarun Sharma, and today I am going to start the syllabus of English compulsory 12th class. As I told you the day before yesterday that from Monday your English compulsory syllabus will be started. So now get set ready along with me. I am going to start your syllabus. Okay, student? First of all, I want to tell you that your rainbow textbook will be started today. And as I have already mentioned that your rainbow textbook is divided into two parts. The first is prose and the second part is about 5 poems. So today, this time, I am going to tell you about the poetry section of your textbook, namely Rainbow. The poetry section of this book contains 5 poems. First of all, this time I am going to introduce you about a very beautiful but pathetic poem, namely The Snare, that has been composed by a very well-known poet, James Stephens. ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको जेम्स स्टीफन्स के द्वारा लिखी हुई जो एक कविता है जिसका नाम मैंने बोला था अभी द स्नेयर, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले द स्नेयर जो कविता है उसका अध्ययन करते हैं, विच हैज बीन कंपोज्ड और रिटन बाय ए वेरी फेमस वेल नोन पोएट जेम्स स्टीफन्स। एक लाइन में सबसे पहले आपको बताऊं, द स्नेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जाल या फंदा, जानते हैं ना, स्नेयर का क्या हुआ, जाल या फंदा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई लास्ट वीडियो दैट द सेंट्रल आइडिया or the theme of the poem is very essential. You should know about this in the first stage. Without knowing the central idea of this poem, I think you will not be able to learn it properly. So now get set ready along with me, because I am going to tell you the central idea or the whole summary of this following poem. Okay, dear students, the trapped rabbit is the pivot around whom the whole poem revolves altogether. The poet all of a sudden hears a sudden cry of pain and comes to know that surely there is a rabbit somewhere in a snare. The poet, who is a truly lover of all the wild animals, loses no much time, and he starts searching for the poor creature, I mean the poor rabbit. He wanders here and there so that he can or he could locate the poor creature rabbit. Meanwhile, one more thing happens in the same poem, and that is that the painful cries of the poor creature create an atmosphere of fright among all the wild animals, and this has been the painful cries of that creature, that his face start looking absolutely distorted with lots of wrinkles. The poet
loves all the animals. This time in the following poem, the poet loves the poor creatures too much. He tries his best. He leaves no stone unturned to locate the poor creature. But dear students, sorry to say, from beginning to the end of the poem, the poet searches the poor creature everywhere, but except failure, he gets nothing in the end of this following poem. In other words, I just want to say you that the main function and the main aim to teach this particular poem is to inspire the people about all the wild animals. We should protect their lives. We should provide them all kinds of freedom. The poet, in other words, want to develop a sense of love, a sense of freedom towards all the wild animals. We should love all the wild animals. We should never try to catch them, but we should be ready to do something for their betterment. This is the summary. This is the central idea of the poem. I think you may better understand. After telling you the whole summary of this poem, this time I am going to translate this poem in हिंदी. ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने ये जो आपकी पोइम थी जेम्स स्टीफन्स की द स्नेयर, इसको मैंने समराइज़ किया था, अर्थात इसको मैंने सारांश के तौर पर आपको बताया था. इसका मैंने आपको सेंट्रल आइडिया अर्थात केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार भी बताया था. मुझको लगता है कि चूँकि मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही सब कुछ बोल गया आपके सामने, तो कहीं आपको दिक्कत ना हो. यही वजह है कि मैं अब इस पोइम को इंग्लिश से हिंदी में आपके सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अनुवादित कर रहा हूँ. इसलिए मेरे साथ में आप तैयार हो जाइए, ताकि कहीं इंग्लिश में समझने में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप उस चीज़ को अब यहाँ पर टैली कर लें और एक बार कंप्लीट कर लें. तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, द स्नेयर जो कि टाइटल है, जो कि शीर्षक है, उसका हिंदी में अर्थ होगा जाल या फंदा. जाल या फंदा आप जानते हैं ना बच्चे, जो किसी भी जानवर को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए काम में लिया जाता है. एक्चुअली होता क्या है कि ये पूरी की पूरी जो पोइम है, पूरी की पूरी जो कविता है, वो एक ऐसे खरगोश के बारे में है जो कि जाल में फंसा हुआ है. अब वो जाल में फंसा हुआ है, उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या चाहता है, कभी उसके प्रति क्या सोच रखता है, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो तैयार है ना मेरे साथ में? चलते हैं जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. ओके, पहली लाइन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन. अनुवाद करेंगे इसका, आप मेरे साथ तैयार हो जाइए. आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि कभी जो है वो दर्द की या दर्द से भरी हुई एकाएक चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है. क्या समझे बच्चे? कि कभी जो है वो दर्द की या दर्द से भरी हुई अचानक से या एकाएक चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है. देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर. सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम. और उस दर्द भरी चीख और चिल्लाहट को सुनने के बाद में कभी को पता चलता है, कभी को महसूस होता है कि मानो ना मानो किसी जाल या फंदे में कोई खरगोश फंस गया है. तो ये दो सेंटेंस आपने समझे होंगे. नाउ कम टू द थर्ड और द नेक्स्ट. नाउ आई हियर द क्राई अगेन. इसका अनुवाद क्या है कि अब मैं उसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को दोबारा से सुनता हूँ. फोर्थ लाइन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन
मुझे ये तो पता है कि आवाज़ खरगोश की है, जाल में फंसे खरगोश की है, लेकिन आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिरकार वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो ये पहला जो स्टैंजा था बच्चों, मुझको लगता है कि आपने बेहतर समझा होगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा अलॉन्ग विद मी, ओके। ये जो सेकंड स्टेंजा है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, यहाँ कवि फिर से कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिरकार वो जाल में फंसे हुए बेचारे से खरगोश की आवाज़ आती कहाँ से है। ये फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन किया था अपन ने अभी अभी, है ना, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। बच्चों, एड को कहते हैं अपन मदद या सहायता को, ठीक है। तो इसका अनुवाद सुनिए, ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड। अब चूंकि वो जो खरगोश जो जाल में फंसा हुआ है वो लगातार फॉर एड यानी मदद या सहायता के लिए कॉलिंग आउट यानी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। नाउ गो टू द थर्ड सेंटेंस, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। अब इस लाइन को आप बेहतर समझो, क्योंकि कई बार एक्सेक्ट में इसको क्वेश्चन के तौर पर भी पुटअप कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, इसको मैं दो तरह से आपको समझाऊंगा कि चीखता और चिल्लाता जो खरगोश है वो फ्राइटेंड एयर यानी पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को फ्राइटेंड यानी डरावना बना रहा है। इतना तो आप भी जानते हैं कि जब वो प्राणी लगातार चीख और चिल्ला रहा था तो उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि आसपास का जो पूरा की पूरा एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, माहौल था, वो पूरा डरावना हो गया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए और आप चाहें तो यूँ भी समझो कि फ्राइटेंड एयर यानी उस डरावने एयर यानी माहौल को देख करके क्राइंग, वो बेचारा सा छोटा सा प्राणी जो खरगोश था वो लगातार चीख और चिल्ला रहा था। Now come to the last sentence of this stanza, making everything afraid। और उस खरगोश के लगातार चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ें थी वो जंगल की प्रत्येक चीज़ को या जंगल के प्रत्येक जानवर को भयभीत कर रही थी, डराने का काम कर रही थी। तो मुझको लगता है ये स्टेंजा भी आपने मेरे साथ में कंप्लीट किया हुआ था। अब हम लोग इस अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपसे कहूँ बीच में कि फॉलो मी अटेंटिवली, कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के मेरी बात को आप सुनिए। हालांकि मुझमर आप में काफ़ी अभी फासला है, काफ़ी गैप है। मैं यहाँ क्लासरूम में खड़ा होकर के इस मोबाइल फ़ोन के सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपना वही एफर्ट कर रहा हूँ जैसा मैं किया करता हूँ। ये केवल आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख करके पूरे सहज भाव के साथ में मुझको समझें, लर्न करें। मुझको पक्का पता है कि यू विल लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। आप प्रयास कीजिए, कंठस्थ आपको हो जाएगी। नाउ गो टू द नेक्स्ट, मेकिंग एवरीथिंग एफर्ट। अब इसका अनुवाद देखो क्या होगा कि उस खरगोश के लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो है वो प्रत्येक चीज़ को डरावना बना रही है। ये हमने अनुवाद किया था अगले स्टेंजा की फर्स्ट सेंटेंस का। क्या किया था अपन ने कि उसके चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो जंगल की प्रत्येक चीज़ को भयभीत कर रही थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। ये लगातार उस प्राणी के चीखने और चिल्लाने का ही परिणाम था कि लिटिल फेस, कि उस खरगोश का जो छोटा सा चेहरा था उसके ऊपर ऑल ऑफ ए सडन अचानक से रिंकलिंग यानी झुर्रियों का आना प्रारंभ हो गया। ये बात बिल्कुल नेचुरल है बच्चों कि
जब आदमी या कोई प्राणी बिल्कुल अच्छे मूड में होता है, प्रसन्न होता है, तो एक बार तो यदि उसकी झुर्रियाँ भी हों तो वो भी लगभग फेंट हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं, वो सुंदर दिखाई देता है, प्लीजेंट दिखाई देता है, फाइन दिखाई देता है। लेकिन यदि आदमी किसी प्रॉब्लम में हो, कोई बेटर सर्कमस्टेंसेस उसके सामने हो, कोई कटु परिस्थिति हो, तो अनटाइमली भी उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती हैं। द सेम थिंग इज़ नाउ गोइंग टू टेक प्लेस अलॉन्ग विद द सेम पुअर क्रिएचर रैबिट हियर, कि यही कारण था कि वो लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, यही कारण था कि उसके छोटे से चेहरे पर क्या गई थी, झुर्रियाँ गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगली सेंटेंस पर। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और जैसे ही वो प्राणी एक बार फिर से मदद के लिए, सहायता के लिए चिल्लाता है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं चाह करके भी उसके स्थान को नहीं ढूंढ पाता कि आखिरकार वो जो प्राणी है वो कहाँ पर छिपा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम अभी तक जो स्टेंजा रीड कर रहे थे उनको आपने समझा होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेंजा, और अब बिल्कुल मैं अंतिम स्टेंजा की ओर आपको लेकर के चल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको भी कंप्लीट करेंगे मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, देखिए, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस लास्ट स्टेंजा हेयर, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। चाह कर के भी, आफ्टर मेकिंग टू मच एफर्ट, इतना प्रयास करने के बाद भी मैं बता नहीं सकता कि आखिरकार वो स्थान कौन सा है। वेयर हिज पो, सेकेंड सेंटेंस, वेयर हिज पो इज इन द स्नेयर, कि आखिरकार वो कौन सा स्थान है और वो कौन सा एक प्रकार का जाल है जहाँ पर उस खरगोश का पौ यानी पंजा फंसा हुआ है। कभी चाह रहा है कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले, ताकि वो बिना टाइम को गवाए जल्दी से जल्दी उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सके एंड सेव द लाइफ ऑफ द पुअर क्रिएचर, और बेचारे से प्राणी के जीवन को बचा सके। लेकिन यहाँ वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट होकर के, हताश होकर के कहता है कि लाख चाहने के बावजूद भी मैं बता नहीं पा रहा आखिरकार किस जगह, किस लोकेशन पर उसका पंजा जो है वो जाल में फंसा हुआ है। द लास्ट टू रिमेनिंग सेंटेंस का बात कर रहे हैं बच्चों। लिटिल वन ओ लिटिल वन, जब कवि के पास में, पोइट के पास में कोई ऑप्शन, कोई चारा, कोई विकल्प नहीं बचता, तो अंत में वो केवल अपनी सिंपैथी को एक्सप्रेस करता है, अपनी सहानुभूति को प्रकट करता है प्राणी के लिए। क्या कहता है? लिटिल वन ओ लिटिल वन, अरे छोटे से, अरे छोटे से, अरे प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, आप निराश मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि आई एम सर्चिंग, मैं सर्चिंग यानी खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, एवरीवेयर यानी प्रत्येक स्थान पर। कहने का मतलब है कि इन द लास्ट स्टेंजा, इस अंतिम स्टेंजा में देखें तो कवि जो है वो केवल बेचारा और कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है, केवल अपनी सिंपैथी को, अपनी सहानुभूति को प्रकट करके कह रहा है कि आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि आई हैव नॉट गिवन अप माई एफर्ट सो फार, क्योंकि मैंने अभी तक अपने प्रयास को त्यागा नहीं है। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर यू, क्योंकि मैं अभी भी आपको तलाश कर रहा हूँ। सो हैव पेशेंस, इसलिए धैर्य रखो और घबराओ मत, क्योंकि अब नहीं तो अगले मोमेंट आई होप कि आई विल डेफिनेटली फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यू, कि मैं अब नहीं तो कुछ समय बाद में तुम्हारी जो लोकेशन है, तुम्हारी जो स्थिति है जहाँ पर तुम जाल में फंसे हो, उसको मैं ढूंढ ही लूँगा। तो आपने बच्चों देखा कि किस प्रकार मैंने पहले इस पूरी पोइम को समराइज़ किया था, किस में? इंग्लिश में। और उसके बाद में चूँकि आपको कहीं इंग्लिश में लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इस पूरी पोइम को, कंप्लीट पोइम में आपकी सेवा में हिंदी में इसको अनुवादित कर दिया। मुझे लगता है आपने इसको पूरी तरह से समझा होगा। टू लर्न मोर, ज़्यादा समझने के लिए, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद में रिवाइज दिस पोइम, इस पोइम को आप एक बार दोहराइए, 2 बार दोहराइए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एब्सोल्युटली। With the next new videos, I will attend you tomorrow. Till then, goodbye and take care.